أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں پیارے سسٹر؟ آج ہم نیو ٹاپک لینے والے ہیں جس کا نام ہے چڑیا کی کہانی. دیکھیے یہاں پر ایک چڑیا کی کہانی آپ کو دی گئی ہے جس میں کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا قصہ ہے. ایک سٹوری ٹائپ ہے یہ بھی، تو اچھے سے سمجھ لینا، پھر اس کے بعد کوشچن آنسرس کرنے ہوں گے. تو دیکھیں سبھی پہلے سمجھ لیں، ہمارا سبق کا عنوان ہے چڑیا کی کہانی. تو دیکھتے ہیں، ایک تھی چڑیا. ایک چڑیا تھی. دیکھیں جب بھی یہ سبق سمجھا جاتا ہے نا، آپ نے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے نا اس کا پکچر آنا چاہیے ایز اے اسٹوری. تب کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا، جو بھی آپ کوشچن آنسرس جب بھی یاد کریں گے نا آپ کو بہت ایزیلی یاد ہو جائے گی. اس لیے یہاں پر تھوڑا سا پورا فوکس کر بیٹھنا ہے. ایز اے اسٹوری مائنڈ میں آپ کے سب یہ چلنی چاہیے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو ایک تھی چڑیا، ایک تھا چڑا، ہے نا. ایک چڑیا تھی اور ایک چڑا تھا. ہاں، میل اور فیمیل ایسے دونوں ساتھ رہتے تھے. بہار کا موسم تھا، ہے نا، موسم میں باہر آیا ہوا تھا. دونوں یہ ایک چڑیا اور ایک چڑا دونوں ساتھ میں رہتے تھے اور باہر کا موسم تھا. دونوں نے سوچا چلو گھونسلہ بنائیں. چڑیا اور چڑا نے سوچا کہ ہم گھونسلہ بنائیں گے، رہنے کا کچھ ٹھکانہ کر لے. دونوں تنکے چن کر لاتے، تے پہ تے جمائی. دونوں نے تنکے چن کر لائے اور تے پہ تے جمائی. تے پہ تے جمانا یعنی جیسے کہ لاسٹ میں ایک دم ہارڈ والی کاڑیاں، ہے نا، اور اس کے اوپر ایک دم سافٹ والی، پھر اس کے اوپر ایک دم سافٹ، ایسے کرتے کرتے تے پہ تے ان لوگوں نے کیا جمائی یعنی رکھنا. جمانا یعنی رکھنا. دیکھیے جیسے ہم لوگ انسان گھر بناتے ہیں نا، تو اللہ نے چرند پرند کو بھی ایک فن دیا ہے، ان میں بھی ایک ہنر رکھا ہے کہ وہ بھی اتنے صرف چونچ ہی کے ذریعے ایک دم خوبصورت سے خوبصورت ہے نا ان کا گھر بناتے ہیں، گھونسلہ بناتے ہیں. تو یہ چڑیا اور چڑے نے بھی کیا کہ تے پہ تے جمائی، مطلب تنکوں کی. جو تنکا ہوتا ہے نا، تنکا یعنی دیکھیے ناریل کے جو اوپر کا چھلکا ہوتا ہے نا، اس سے وہ چھوٹے چھوٹے ذرات جمع کرتے ہیں. پھر اس کے ہارڈ جو ہوتی ہے نا لکڑیاں کا، چھوٹے چھوٹے دھاگے جیسی لکڑیاں ہوتی ہے، دیکھیں دھاگے جیسی ایک دم سافٹ، وہ اس کو اوپر، جو ہارڈ ہے وہ نیچے. یہ کیوں تیاری کر رہے ہیں وہ، کہ ان کے بچوں کے لیے تیار کر رہے گھر. تو دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں پھر بچوں کے حساب سے، ہے نا، بچے کتنے سافٹ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ایک دم پیارے پیارے ہوتے ہیں، ہے نا، بہت وہ چھوٹے ہوتے ہیں. اور وہ اپنے بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں پھر ہارڈ والی کاڑیاں نیچے، پھر اس کے اوپر تھوڑی ایک دم لاسٹ سے مضبوط، پھر اس کے اوپر سافٹ، ایسے سافٹنس بڑھاتے ہیں. تو جب بچے اس میں رکھے جائے تو انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. تو اس لیے وہ بھی کیا کرتے ہیں، دونوں چڑا اور چڑیا سافٹ سے، ہے نا، ایسے لکڑیاں کاٹیاں جمع کرتے ہیں اور تے پہ تے جماتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا منا سا گھر بنایا. منا سا نہیں، یہاں منا سا کیوں کیا، کیونکہ پیارا سا گھر بنایا اس لیے. ننے ننے سینوں سے دبایا، ہے نا. دیکھیے چڑیا کتنے ہوتے ہیں، چڑیا ہے نا، دیکھا ہے نا آپ نے کتنے چھوٹے ہوتے ہیں، اور ان کے ننے ننے سینے ہوتے ہیں نا. جیسے وہ چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے اس حساب سے ان کے سینے تو کتنے چھوٹے ہو گئے. اور انہیں ہاتھ تو نہیں ہے کہ ہاتھ سے دبا کر ایک دم پرفیکٹ سا گھر بنائے، مگر اللہ نے ان میں ہنر رکھا ہے کہ اپنا خود کا گھر وہ بھی بناتے ہیں. تو ننے ننے اپنے سینوں سے دبایا اور گھونسلے کو نرم کیا. اچھا سا گھر تیار ہو گیا. دیکھیے ہے نا، موسم میں باہر آیا تو انہوں نے کیا، انہیں پتا ہے ان کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے فکس، اسی سیزن میں وہ انڈے سینے کا کام کرتے ہیں. انڈے سینا یعنی کیا، کہ وہ اس سے بچے تیار کرتے ہیں. اس پر بیٹھ کر انہیں نا ہیٹ دیتے ہیں، اور وہ ہیٹ سے دیکھیں اللہ کا نظام کتنا پیارا ہوتا ہے کہ ان کی گرمی سے اس انڈے میں تبدیلی ہوتی ہے. جو انڈا ہوتا ہے اس میں لکوڈ ہوتا ہے، ایک بل ہوتا ہے نا، بال ہوتا ہے، وہ ایک بچے میں تبدیل ہو جاتا ہے ماں کی اور باپ کی گرمی سے. تو پھر دیکھیے پھر ان کا تو گھر اب تیار ہو گیا. پھر چڑیا نے ایک انڈا روز کے حساب سے 4 دن میں 4 انڈے دیے. دیکھیے روزانہ ایک انڈا، اس حساب سے 4 دن میں اس چڑیا نے 4 انڈے دیے. پھر وہ دونوں انڈے کو سینے لگے.
सीने लगे यानी सीना यानी सुई धागे से सीना वाला नहीं, ये सीना यानी कि उसको गर्मी देना, सेंकना, उससे सीना है ये, सीने लगी। एक दिन चिड़िया अंडों पर बैठती, चिड़ा दाना चुगने जाता, और दूसरे दिन चिड़ा अंडों पर बैठता और चिड़िया दाना चुगने जाती, है ना? देखिए उसको ऐसा उसका रूल होता है शायद कि कंटिन्यू उसको हीट मिलना चाहिए। फिर अभी कंटिन्यू अगर चिड़िया है ना, मतलब फीमेल अगर हीट देगी तो उसको भूख लगेगी, फिर उसको खाना वगैरह खाने का क्या, तो फिर वो बारी बारी है ना, चिड़िया और चिड़ा दोनों है ना, जो उसके मम्मी होते हैं और पापा दोनों भी ये क्या करते हैं, बारी बारी अंडे को गर्मी देते हैं, सीते हैं और बारी बारी खाने के लिए जाते हैं। तो देखिए कैसे कहा है, एक दिन चिड़िया अंडों पर बैठती और चिड़ा दाना चुगने जाता, और दूसरे दिन चिड़ा अंडों पर बैठता और चिड़िया दाना चुगने जाती। इसी तरह 1-2 दिन, इसी तरह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 15 दिन हो गए। देखिए यहाँ पर इसमें समझ में आता है कि 15 दिन का टाइम लगता है कि अंडे से बच्चे को निकलने के लिए। तो 15 दिन उनकी ये प्रोसेस शुरू रहती है कि अंडों को हीट देने की। अल्लाह की कुदरत से अंडों में बच्चे बन गए। अल्लाह की कुदरत, देखिए मैंने कहा ना कि अल्लाह का निज़ाम कैसा प्यारा होता है कि उनकी हीट से अंदर अंडे में तब्दीली हो जाती है, और तब्दीली ऐसी कि एक नन्ही-सी जान उसमें पैदा हो जाती है। बच्चों ने बच्चों ने खटखट बच्चे ने क्या किया देखिए, खटखट, उसके आगे देखते हैं, खटखट अंडों को चोंच मार मारकर शायद वो बाहर आ गए। देखते हैं। हुँ। चोंच मारी, बच्चों ने खटखट अंडे को क्या की, चोंच मारी, सब अंडे टूट गए। देखिए उनमें ऐसे होता है कि जब भी बच्चे पूरे मतलब जो उनकी प्रोसेस है पूरी तैयार होने की, वो होने के बाद बच्चे खुद अपनी चोंच से है ना अंडा फोड़ देते हैं। तो खटखट करके बच्चों ने चोंच मारी, सब अंडे टूट गए, बच्चे बाहर निकल आए। कितना खूबसूरत लगता होगा, है ना? जब बच्चे छोटे-छोटे बच्चे अपनी चोंच के ज़रिए क्या करते होंगे, उस अंडे को फोड़ते होते। यही उनको साइन होता है कि जब अंडों से खटखट आवाज़ आती है, तब वो मेल और फीमेल मतलब चिड़ा और चिड़िया समझ जाते हैं कि बच्चों के आने का वक्त हो गया है। बच्चे बाहर निकल आए, नन्हे-मुन्ने, आंखें आंखें बंद। देखा नन्हे कितने प्यारे-प्यारे बच्चे हैं वो, नन्हे-मुन्ने, आंखें बंद, न पर न पुर्जे, जैसे गोश्त की बोटी। यहाँ पर वो बच्चों का है ना पूरा उनकी बताया है किस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है कि नन्हे-मुन्ने होते हैं, उनकी आंखें भी बंद होती है, ना उन्हें पर होता है, ना पुर्जे, जैसे गोश्त की छोटी-सी बोटी होती है वो। माँ-बाप कीड़े चुनकर लाते, देखिए अब वो कैसे परवरिश करते हैं कि माँ-बाप कीड़े चुनकर लाते, उनकी चोंच में डाल देते, बच्चे खुशी-खुशी खा लेते। हाँ, बच्चे क्या करते माँ-बाप ने क्यों, तो देखिए उन्हें ना पर है, ना पुर्जा है, हाँ? और ना उनकी आँखें खुली होती है। तो फिर माँ-बाप क्या करते हैं, वो सिर्फ़ देखिए आपने देखा होगा शॉर्ट फ़िल्में वग़ैरह कि वो बच्चे ना ऐसे सिर्फ़ चोंच करके ऐसा मम्मी-पापा की तरफ देखते हैं, और मम्मी उनकी जो चिड़िया होती है ना, वो चोंच में उनके कीड़े लाकर डालती है और वो खाने का काम करते हैं, खुशी-खुशी खा लेते हैं। इसी तरह वो खाते रहे, बढ़ते रहे। इसी तरीके से उनकी प्रोसेस शुरू रहती है खाने की, खाते-खाते हैं और बड़े हो जाते हैं। धीरे-धीरे उन्हें पर-पुर्जे निकले। माँ ने फुर-फुर उड़ना सिखाया, चोंच से कीड़े पकड़ना सिखाया, कुट-कुट दाना चुगना सिखाया। जब बच्चे बड़े हो गए और जब सब कुछ सीख गए तो चिड़िया बोली, अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, जाओ अब अपनी रोज़ी खुद तलाश करो। चारों बच्चे अपनी रोज़ी की तलाश में इधर-उधर निकल गए। देखिए यहाँ बहुत बड़ा मैसेज दिया जा रहा है कि माँ-बाप का काम क्या होता है। माँ-बाप ने देखिए जैसे है ना, जैसे इंसानों में भी होता है सेम, परिंदों में, चरिंदों में भी वही प्रोसेस होती है ना। जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे की पूरी ज़िम्मेदारी माँ-बाप की होती है, और फिर जैसे बच्चों को जैसे वो खाना खिलाना, उनकी परवरिश करना, उनकी देखभाल करना, फिर उसके बाद उन्हें हर वो चीज़ सिखाना जो ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी होती है ना? जो ज़माने के लिए ज़रूरी होती है। तो इंसानों में अगर देखते हैं तो क्या ज़रूरी है ना? उठने-बैठने का तरीका, आदाब, अतवार, दीन की मालूमात, दुनिया की मालूमात, ये सब हुनर सिखाकर, उनकी शादी कराकर फिर उन्हें क्या किया जाता है, खुद के डिसीज़न वग़ैरह लेने के लिए आज़ाद किया जाता है, और यही करना चाहिए देखिए, है ना? एक माँ-बाप जैसे हम सोचते हैं, है ना? जैसे कि चिड़ा और चिड़िया ने क्या किया, बच्चे की पूरी देखभाल की, उन्हें बड़ा किया, जब उनके पर-पुर्जे निकल आए, उन्हें खाने का तरीका सिखाया, उड़ना सिखाया, दाना चुगना सिखाया, और जैसे वो सब कुछ सीख गए तो उनके माँ ने उन्हें क्या कहा कि जाओ, अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, अब अपनी खुद रोज़ी तुम खुद तलाश करो।
हाँ, इस तरह का। और यही मैसेज है हम इंसानों के लिए, इस सबक देने का मकसद हमें यही है कि देखिए जैसे आजकल माएँ होती है ना कि बच्चों को खुद पे डिपेंड बहुत बनाती है, ऐसे नहीं करना हमें। हमें उन्हें ज़िंदगी अगर सोचो कोई एक माँ है, अगर वो टोटली बच्चों को खुद पर डिपेंड रखती है और खुदा ना ख़ास्ता कुछ हो जाता है हादसा, तो फिर वो बच्चों को कितना मुश्किल जाएगा, है ना? तो इसीलिए माँ की ज़िम्मेदारी होती है, बाप की ज़िम्मेदारी होती है कि उन्हें क्या करना है कि ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाना है। हाँ, खुद खुद डिसीज़न लेने सिखाना है, जैसे-जैसे बड़े होते हैं, ऐसे नहीं कह रही हूँ कि छोटे बच्चे हैं तभी आप उन्हें उन पर ज़िम्मेदारी डालें, उन्हें डिसीज़न लेने को कहें। जैसे वक़्त है, जैसी एज है, उस हिसाब से उनकी ज़िम्मेदारियाँ पूरा करें और उनसे कोई उम्मीद ना रखें। देखिए, आज की तो ज़माना इतना एडवांस है कि बच्चों से कुछ उम्मीद रखना बहुत बेकार है ना? तो माँ-बाप ने यही सोचना है कि हम अपना फ़र्ज़ पूरा करें, उनकी तरबियत करें। सबसे इम्पोर्टेंट उनकी तरबियत होती है, उनकी तरबियत करें ना तो कुछ कुछ ये करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। वो खुद ब खुद अपनी ज़िम्मेदारियाँ ज़माने में रहने का तरीका, किससे कैसे डील करना है, कैसी बात करना है, रिज़्क़ हलाल, हराम क्या है, हलाल रिज़्क़ कैसा है, कैसे रोज़ी कमाना है, ये सब उन्हें सिखाकर अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए कि तू अल्लाह उन्हें अब हिदायत दे, उन्हें रास्ता दिखा। ये नहीं कि अपने खूँटे से बाँध कर रखे, सब माँ ही करे, सब बाप ही करे, हाँ? उन्हें कुछ न सिखाए। ये इस तरीके से भी लाड़ करना, प्यार करना बहुत आगे चलकर बहुत हमें तकलीफ़दा होता है ना? तो इसलिए हमें ये सबक दिया गया है कि माँ-बाप ने माँ-बाप की ज़िम्मेदारी पूरी करनी है। ज़िंदगी जीने का जो फ़न है, वो बच्चों को सिखाना है। ये नहीं कि हमें खुद पर डिपेंड रखना है बच्चों को माँ-बाप पर, है ना? क्यों तो देखिए बुरा वक़्त कभी कुछ कह कर नहीं आता है ना, अचानक से आ जाता है। इसलिए हर हर उस हालात से सीखना, लड़ना हमें हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए। जो ज़िंदगी में जीने का तरीका है ना? देखिए दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोगों से किस तरीके से डील करनी है, बुरों से कैसे बचना है, ये भी हुनर अपने बच्चों को सिखाना है। तो इस सबक बहुत ही अच्छा दिखाया है, इस सबक में कहा गया है कि माँ-बाप ने अपनी ज़िम्मेदारी कैसे पूरी करनी है और ये भी बताया गया है एज़ अ बच्चा आप ये भी सोच सकते हैं कि देखिए माँ-बाप बच्चे आने से पहले कितनी मेहनत करते हैं ना, उनके लिए घर बनाना, उनके आराम के लिए माँ-बाप कितनी तकलीफ़ें उठाती है, किस तरीके से उनकी परवरिश करती हैं, कैसे बारी-बारी है ना, जैसे चिड़ा-चिड़ी खाने के लिए बारी-बारी गए, है ना? क्यों उसको भूख नहीं लगती होगी क्या? मगर वो दोनों ने बच्चों के लिए क्या-क्या कुर्बानी दी, है ना? इस तरीके से एज़ अ बच्चा भी हमें सोचना चाहिए, ये नहीं कि माँ-बाप का ही यहाँ पर फ़र्ज़ बताया गया है। ऐसा भी है कि बच्चों ने भी सोचना चाहिए कि माँ-बाप ने बच्चे आने से पहले कितनी प्लानिंग की जाती है, उनकी कितनी प्लानिंग करते हैं कि कौन-कौन सी बातों की कुर्बानी देते हैं, किस तरीके से माँ बच्चों की परवरिश में उन्हें कितनी दिक्कतें आती है, फिर भी वो खुशी से उसे कबूल करते हैं। तो दोनों पहलुओं को सोचना है, एज़ अ बच्चा भी सोचना है और एज़ अ पेरेंट्स भी सोचना है। तो बहुत ही अच्छी कहानी थी, इससे बहुत से सबक मिला हमें सीखने के लिए। तो देखिए इसमें जो समझ नहीं आएगा, वो आप क्लास के बाद पूछ लेना और देखिए जो हार्ड वर्ड है, जो वर्ड्स न्यू आते हैं उसको नोट डाउन करना और बाद में क्लास के बाद वो याद भी करना है। चलिए फिर हम दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।